Okay, people, so we will, you are going to read me out the problems and we are going to solve the problems on linear equations in one variable. ठीक है, read it out please. क्या क्या बेकिंग्स, अच्छा बेचून्स फादर, चलिए भाई साहब, बेचून्स फादर ओके इज 26 years younger, एक मिनट, younger than बेचून्स ग्रैंडफादर, ओके ग्रैंडफादर, एक मिनट बेटा, ग्रैंडफादर और and 29 years older than Baichun. Okay. The sum of all ages. The sum of all ages of all the three. The sum of all ages of all the three is 135 years. Is 135 years. Okay. What is the age? What is the age of each one of them? What is the age of each one of them? ठीक है, हर एक का एज कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके. सो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? बेचून्स फादर इज 26 years younger than Baichun's grandfather, ठीक है, and 29 years older than Baichun. So हम मान लेते हैं let Baichun's age be x years, ठीक है, let Baichun's age be x years, ठीक है. Okay, Baichun's father is 26 years younger than Baichun. So Baichun's father's age कितना हो जाएगा बोलो? Baichun's father's age कितना हो जाएगा? Baichun से 29 years older than Baichun. So Baichun's father is 29 years older than Baichun. तो कितना हो जाएगा बोलो? x plus 29, ठीक है, ओके. And Baichun's father is 26 younger than Baichun's grandfather. तो मतलब इनके ग्रैंडफादर कितने बड़े होंगे इनके पापा से? 26 years more, ठीक है. So Baichun's grandfather's age, Baichun's grandfather's age कितना हो जाएगा बोलो? This will be 29 plus x plus 26. So this will be how much? X plus 9 plus 6 15, 2 plus 1 3 4 5. X plus 55 हो गया ये, ठीक है. तो अभी इन तीनों का उम्र कितना है? 135. So Baichun's age plus Baichun's father's age, that is x plus 29, and Baichun's grandfather's age, that is x plus 55. All this is going to be equal to how much? All this is going to be equal to 135. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है ये? Okay. So आपका यहाँ पे कितना हो गया बोलो? x plus x, that is going to be 3x plus 29 plus 55. So 9 plus 5 हो गया आपका 14, 2 plus 1 हो गया 3 plus 5 हो गया 8. 84 is equal to 135, ठीक है. सो 3x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 135 minus 84. So that will be 5 minus 4 1 and 8 plus 5 31. So 3x is equal to 51. So therefore x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 51 by 3, that is how much? 17, है ना. So कितना एज हो जाएगा इसका? 17. तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 17 years, ठीक है. ओके, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? Therefore Baichun's age is 17 years, ठीक है. Baichun's father's age, that will be how much? 17 plus कितना होगा बोलो? 17 plus 29. So that will be how much? 46 years. And Baichun's grandfather's age will be how much people? Grandfather's age will be how much? This will be equal to 46 plus 55. 6 plus 5 11, 4 plus 1 5, 9 plus 2 plus 20, x plus 55 ना, 17 plus 55. I am so sorry. 7 plus 5 12, 72 years. Here, so these are the respective ages.
ओके ओके ओके, चलिए बताइए दूसरा सवाल। 15 years from now, 15 years from now, Ravi's age Ravi's age will be 4 times will be 4 times his present age. his present age. Ravi's age will be 4 times his present age. Okay. What is Ravi's present age? 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 ठीक है, तो 15 years from now, so हम यहाँ पे मान लेते हैं let Ravi's age be x years. Let Ravi's age be x years. Present age मतलब आपका present age और therefore after 15 years Ravi's age will be, बोलो कितना हो जाएगा? नहीं, आफ्टर 15 years पहले वो तो बताओ कितना होगा? x प्लस 15 हो जाएगा। अभी x है तो आफ्टर 15 years इट विल बी हाउ मच? x प्लस 15 years, ठीक है। नाउ तो ये आफ्टर 15 years वाला जो एज है वो 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज है। मतलब कैसा इक्वेशन बनेगा बताइए आपका? x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे x माइनस 4x, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 15। इसको इधर लेकर जा रहे हैं, इसको इधर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो? माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 15। तो हम यहाँ पे x को क्या लिख सकते हैं? माइनस 15 बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, ठीक है। सो व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? देयरफॉर रवीज प्रेजेंट एज इज 5 years। अभी चाहे तो आप इसको करके देख लो। आफ्टर 15 years रवीज एज विल बी हाउ मच? 20 years हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 into 4 है कि नहीं? प्रेजेंट ईयर का 4 टाइम्स हो जाएगा उसका। सो दिस इक्वेशन और रादर दिस सॉल्विंग इज करेक्ट, ठीक है। ओके, चलिए बताइए। रैशनल नंबर इज सच दैट when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product you get minus 7 by 12. What is the number? ये नंबर क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या हो जाएगा बताइए हमारा? लेट द नंबर बी x, ठीक है। सो रैशनल नंबर इज सच दैट इफ यू मल्टीप्लाइड बाई 5 by 2, तो x इंटू 5 by 2, ठीक है, एंड ऐड 2 by 2 द प्रोडक्ट। आप यहाँ पे 2 by 3 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यू आर एडिंग 2 by 3, यू विल गेट हाउ मच? माइनस 7 by 12, ठीक है। तो यहाँ पे 5 by 2x इज इक्वल टू माइनस 7 by 12 माइनस 2 by 3 है कि नहीं? माइनस 7 by 12 माइनस 2 by 3, तो उसका कितना हो जाएगा बोलो? 12 हो गया यहाँ पे, ये हो गया माइनस 7, 3 इंटू 4 तो 2 4 ज़ा 8, माइनस 8, तो 5, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना है आपका? 5x by 2, तो 5x by 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? माइनस 15 by 12। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो ये हो गया माइनस 5 by 4। अभी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 2 को इससे, ठीक है। तो 4 इंटू 5x विल बी इक्वल टू 2 इंटू माइनस 5। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 2 इंटू माइनस 5 बाई 4 इंटू 5, ठीक है। 2 इंटू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया माइनस 1, तो यहाँ पे हो गया हाफ इंटू माइनस 1, सो दिस विल बी 0.5 इंटू माइनस 1, तो दिस विल बी माइनस 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर द रैशनल नंबर इज़, या हम यहाँ पे माइनस 1 by 2 लिख सकते हैं और माइनस 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलिए आगे सवाल बताइए। हाँ, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर। ओके, लक्ष्मी भाई साहब एक कैशियर है। चलिए,
ओके बैंक में She has currency notes करेंसी नोट्स है यहाँ पे ओके of denominations ऑफ डिनोमिनेशन डिनोमिनेशन दिया हुआ है आपको डिनोमिनेशन आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज डिनोमिनेशन 200 रुपये का 100 रुपये का नोट हाँ rupees 100, ₹100 rupees 50, ₹50 and rupees 10. एंड ₹10 Rupees 50. हाँ The ratio of these numbers the ratio of these numbers is is 2:3:5. 4:3:5 okay 2:3:5 okay The total cash with Lakshmi the total cash with Lakshmi is 4 lakhs. 4 lakhs okay is 4 lakhs okay How many notes of each how many notes of each denomination how many notes of each denomination okay does she have? denomination does she have ठीक है does she have ठीक है कितने नोट्स इन डिनोमिनेशंस के उसके पास हैं हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव ठीक है ओके तो चलिए करते हैं इसको हम मान लेते हैं क्योंकि रेशियो है जैसे हमने पहले भी किया है देखो रेशियो का सवाल तो आप क्या मान लेंगे यहाँ पे लेट ₹100 नोट्स बी 2x सो देयरफॉर रुपीज़ क्या हो जाएगा बोलो 50 नोट्स कितने हो जाएंगे इज कितना 3x एंड रुपीज़ 10 नोट्स कितने हो जाएंगे बोलो 5x ठीक है इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 5x दिस शुड बी इक्वल टू अरे बाबा इधर तो पहले इक्वेशन तो बना लो इतने जल्दी में क्यों हो इक्वेशन तो बना लो बोले जा रहा हो 10x फर्स्ट मेक द इक्वेशन ना वो तो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है 4 lakhs मतलब कितना होगा 1 2 3 4 5 फर्स्ट फॉर्म द इक्वेशन ना ये होगा ठीक है तो यहाँ पे हो गया 10x इज इक्वल टू 4 lakhs 10x इज इक्वल टू 4 lakhs तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 lakhs दिस विल बी 4 lakhs अपॉन 10 ये कैंसिल हो गया कितना आ जाएगा बोलो 40,000 तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो ₹40,000 ठीक है ओके क्लियर है नाउ द टोटल कैश में लिखनी है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सो नोट्स 100 रुपी नोट्स कितने हो जाएंगे ₹100 नोट्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 2 इंटू रुपीज़ कितना है भाई साहब 40,000 तो ये कितना हो गया बोलो ₹80,000 ठीक है ओके अभी ₹50 नोट्स कितने हो जाएंगे बोलो ₹3 इंटू 40,000 ठीक है कितना हो गया ये ₹120,000 ठीक है और ₹5 और क्या है भाई साहब ₹10 नोट्स ये कितना हो जाएगा बोलो 5 इंटू 40,000 तो ये कितना हो जाएगा बोलो मैंने गलत कर दिया सॉरी आई एम मेकिंग इट रॉन्ग ठीक है तो आपके ₹100 नोट्स कितने हो गए ₹100 नोट्स एक्स की वैल्यू इतनी आ गई ना हम सही जा रहे हैं क्या यहाँ पे x की वैल्यू 2x प्लस एक्स ओके हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन तो ₹100 नोट्स कितने हो जाएंगे ₹100 नोट्स कितने हो जाएंगे बोलो 2 इंटू 40,000 तो ये हो गया आपका 80,000 आपके 100 रुपीज़ के नोट्स हो गए ठीक है और ₹50 नोट्स कितने हो जाएंगे ₹50 नोट्स इज़ इक्वल टू 3 इंटू 40,000 सो दैट विल बी 3 4 12 और यहाँ पे 1000 ठीक है 1,20,000 एंड ₹10 नोट्स ये कितने हो जाएंगे बोलो दिस विल बी 5 इंटू 40,000 ठीक है सो 4 5 20 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है तो 2 lakhs इसके हो गए 2 lakh नोट्स ऑफ दिस क्लियर है समझ में आ रहा है ये ओके चलिए बताइए I have a total of rupees टोटल आई हैव इज ₹300 in coins इन कॉइन्स ओके of denomination कॉइन्स के डिनोमिनेशंस दिए हुए हैं यहाँ पे आपको एक यूनिट कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस rupees 1, ₹1 rupees 2, ₹2
रुपीज़ 5. ओके, The number of rupees 2 coins द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स is 3 times is 3 times is 3 times the number of 5 rupees coin. the number of rupees 5 coins, है ना. The total number of coins is 160. is 160. How many coins of each denomination how many coins of each denomination are with me? how many coins of each denomination are with me. ठीक है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, कितने कॉइन्स हैं मेरे पास इतने डिनोमिनेशंस के. ठीक है, ओके. तो हमारा यहाँ पे कितना है भाई साहब, टोटल रुपीज़ 300 है मेरे पास. ठीक है, तो लेट यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना दे, रुपीज़ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. Okay, so let the number of rupees 5 coins be x. ठीक है, so therefore the number of rupees कितना है भाई साहब, 2 coins कितने हो जाएंगे, रुपीज़ 2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स तो 3x हो जाएगा ये. ठीक है, ओके. तो आपका कितना हो गया, टोटल कॉइन्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4x. ठीक है, 4x. और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं यहाँ पे 160. तो अब बताइए रुपीज़ 1 कॉइन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रुपीज़ 1 के कॉइन कितने हो जाएंगे बोलो, 160 टोटल कॉइन्स है, उसमें से रुपीज़ 5 और रुपीज़ 2 के कॉइन्स कितने हैं 4x है, तो रुपीज़ 1 के कॉइन कितने हो जाएंगे. अरे बोलो, बहुत सिंपल है भाई साहब. नहीं, अरे x कैसे होगा, टोटल 160 है ना, उसमें से तो इन दोनों के 4 हो गए, तो कितना हो जाएगा रुपीज़ 160 माइनस 4x ना. टोटल कॉइन्स कितने हैं 160 हैं, उसमें से 5 रुपी कॉइन x के. अरे कैसे 156, ये अनलाइक टर्म्स है, ऐड कैसे करोगे, ये 4x है ना भाई, 160 से आप 4x को माइनस नहीं कर सकते हैं. दिस कैन नॉट बी डन बिकॉज इट इज़ ये एक आपका गलत हो जाएगा. 160 माइनस 4x नहीं कर सकते आप. हाँ, इस टर्म को ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे हम. ठीक है, तो रुपीज़ 1 कॉइन इतने हो गए. अभी 300 इज़ द टोटल वैल्यू. ठीक है, तो टोटल वैल्यू कैसा हो जाएगा, देखो रुपीज़ 1 कॉइन मतलब रुपीज़ 1 कॉइन कितने हैं 4x, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इंटू 1. ठीक है, रुपीज़ 5 कॉइन्स कितने हैं x, तो x इंटू 5 इसकी वैल्यू हो गई. और रुपीज़ 2 कॉइन्स कितने हैं 3x, तो 3x इंटू 2 इसकी वैल्यू हो गई. इन सब का वैल्यू अगर हम टोटल निकालेंगे तो कितना आ रहा है बोलो 300. दिस विल बी द इक्वेशन दैट विल बी फॉर्म. क्या ये समझ में आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 160. ये अनलाइक टर्म्स है भाई साहब, x वाले टर्म को आप नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 160. ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 11 माइनस 4 कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 300. ठीक है, तो माइनस 7x, यार कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, माइनस कैसे होगा, यहाँ पे प्लस होगा ना, दिस विल बी प्लस. 5 प्लस 6 11 माइनस 4 7x. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका प्लस 7x. ओके, so this will be 7x is equal to 300 minus 160. So this will be 300 minus 160. That's going to give you how much 140. तो x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 140 by 7 that is 20. ठीक है, 20 हो गई x की वैल्यू. ठीक है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी. तो अभी हम बताएंगे देयरफॉर रुपीज़ 1 कॉइन कितने हो जाएंगे, रुपीज़ 1 कॉइन कितने हैं देखो 160 माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू डाली यहाँ पे 160 माइनस 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा बोलो 160 माइनस कितना हो गया 80. सो दिस विल बी 80. ठीक है, ओके. फिर रुपीज़ 5 कॉइन्स, नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स कितने हो जाएंगे बोलो x
दैट इज हाउ मच, दैट इज हाउ मच 20, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 20, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स, नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स, ये कितना हो जाएगा बोलो 3 इंटू 20, दैट इज हाउ मच 60। क्लियर, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके चलिए आगे वाला बोलिए। The organizers ऑर्गेनाइजर्स of ऑफ easy competition, क्या कंपटीशन, easy competition, ऐसे कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, ओके। decide that डिसाइड दैट a winner द विनर, ओके, डिसाइड दैट द विनर in the competition इन द कंपटीशन get a prize of गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100. गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100, ओके। Who does not wins हु डज नॉट विन, get a prize of हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25. ₹25, ओके। The total prize money टोटल प्राइज मनी, distributed is ₹3,000. टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड इज कितना है ₹3000, ओके। Find the number of winners फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, ओके, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स if the total number इफ द टोटल नंबर, of participants टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स is 63. इज कितना 63. इज 63, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके तो हम यहाँ पे देखो, या तो लोग विन करेंगे या तो लूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं लेट यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ विनर्स भी कितना है x, तो नंबर ऑफ नॉन विनर्स कितने होंगे बोलो, कितने हो जाएंगे? अरे जल्दी बोलो, लेट द नंबर ऑफ विनर्स x है तो नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे? अरे भाई साहब टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 63, जिसमें से विनर्स कितने हो गए x माइनस 63 क्यों होगा? 63 माइनस x होगा ना भाई, टोटल से 63 माइनस x कर दोगे तो भाई साहब ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नॉन विनर्स। क्या कर रहे हो भाई साहब? ओके तो अभी विन्स अ प्राइज ऑफ 100, जो विनर होते हैं उनको कितना मिल रहा है 100, तो इतने नंबर ऑफ विनर्स हैं और हर एक को आप कितना बांट रहे हो भाई साहब 100 रुपये, ठीक है। और इतने नंबर ऑफ नॉन विनर्स हैं और इनको आप कितना बांट रहे हैं भाई साहब 25 रुपये, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा बोलो? 3000, ठीक है। सो दिस विल बी 100x प्लस 63 इंटू 25 कितना हो जाएगा बोलो? 63 इंटू 25, 3 5 ज़ा 15, 6 5 ज़ा 30, 31, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, कितना हो गया ये 5, 6 प्लस 1 7, ये 5 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो 100x माइनस 25x कितना हो जाएगा बोलो? 75x, ठीक है। और ये 1575 उधर जाएगा तो ये हो गया 3000 माइनस 1575 कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे? 5 प्लस 5 10, 9 से 7 गया 2, 9 से 5 गया 4, 3 से 1 गया 2, ठीक है ना, यही आएगा। सो दिस विल बी 75x इज इक्वल टू दिस। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? x की वैल्यू हो जाएगी 2425 बाई 75, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45 और यहाँ पे 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35। क्या कर रहा हूँ? क्या 14 आएगा? ठीक है चलिए। सो दिस विल बी 1425, ठीक है। चलिए कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो 1425 x विल बी इक्वल टू 1425 बाई 75, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5 15 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा, ठीक है, 3 1 ज़ा 3,
ये 9 ज़ा 27, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 19, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो आपने यही एज्यूम किया था, देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स कितना हो गया बोलिए, नंबर ऑफ विनर्स विल बी 90। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी चाहे तो करके देख लो, देखो नंबर ऑफ विनर्स 19 है ना, आप रफ में चाहे तो करके देख लीजिए। इन सबको कितना मिलेगा, हर एक को 100 रुपये मिलेगा, मतलब टोटल कितना मिल रहा है यहाँ पे 1900। नंबर ऑफ नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे बोलो, 63 माइनस 19 है कि नहीं, 9 + 4 13 4 इतने हुए ना, 44 नॉन विनर्स हुए। 44 × 25 कीजिए, कितना आ रहा है देखो, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 21 22, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 0 2 + 8 10, 2 + 8 10 1 11, 1100 + 1900 कीजिए, कितना आ जाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मनी। सो योर सवाल इज करेक्ट। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये इतना ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना प्राइस में, 3000 रुपये। चलिए बताइए, एक्सरसाइज खत्म, दूसरा वाला एक्सरसाइज चालू कीजिए। एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, आई डोंट, नहीं ये एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है भाई साहब, बेस्ड ऑन लेटेस्ट है, वो आपका एनसीईआरटी नहीं है, ये आपका रेफरेंस बुक है, इट इज़ नॉट एनसीईआरटी। ये वाला हो गया है, हाँ ये वाला चालू कीजिए फटाफट। हर एक स्कूल के अलग अलग बुक्स हैं, रेफरेंस बुक, तो सबसे कराने लगे तो चैप्टर तो वहीं रख जाएगा भाई। फॉलो एनसीईआरटी, दैट इज इट। आप वो सवाल आप खुद से लगाइए, जो नहीं होगा वो मुझे बताइएगा। आई विल ओनली डू एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी आउट हियर। जो स्टेट बोर्ड्स की बुक्स हैं या एनसीईआरटी की बुक्स हैं वही हम यहाँ पे करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डू रेफरेंस बुक्स आउट हियर, ठीक है। चलिए, कल किसने किसने वीडियो देखा था, हाँ नहीं, जो पहले वाले का वीडियो था वो अभी तक आपने नहीं देखा, अभी तक देखा, ओके, आपने नहीं देखा, इनसे पूछ रहा हूँ। काव्या नहीं, क्यों, रोज आपका आंसर नो क्यों है, हाँ बताइए, पूछ रहा हूँ, रोज आपका आंसर नो आ रहा है। आप 3 दिन एब्सेंट थी, उसका क्या करेंगे हम, बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मैजिक होने वाला यहाँ पे, हाँ क्या है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 from it. She multiplies the result. She multiplies the result by 8. The result now obtained. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. Okay. What is the number? What is the number? ठीक है, ये नंबर क्या होगा। चलिए बताइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेट द नंबर बी x, ठीक है। चलिए, लेट द नंबर बी x, ठीक है। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, तो x माइनस 5/2, ठीक है। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, तो ये रिजल्ट आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, तो किस क्या नंबर आपने समझा था, 3 टाइम्स द सेम नंबर दैट शी थॉट ऑफ, शी थॉट ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लिया हमने, 2x माइनस 5 हो गया ये इंटू 8 इज इक्वल टू 3x, ये 2 और 4 से कट जाएगा, तो 4 इंटू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x, विच मीन्स हाउ मच, 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x। इस 3x को हम इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 8x माइनस 3x इज, और 20 को हम उधर ले रहे हैं तो ये हो गया +20।
तो 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 बाई 5 दैट इज 4. ठीक है. सो अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर 4. ठीक है. एंड शी सब्ट्रैक्ट्स 5 बाई 2 फ्रॉम इट. ये हम रफ में कर रहे हैं. ठीक है. तो कितना हो जाएगा बोलो 2 और यहाँ पे क्या 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 5, सो दिस मीन्स इज 3 बाई 2. 3 बाई 2, ये 3 बाई 2 आया. अभी इस 3 बाई 2 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 4 ज़ा 8, तो कितना आ गया यहाँ पे 12. अभी देखो अगर हम यहाँ पे 3 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो वो भी 12 आएगा. सो आवर आंसर इज करेक्ट. ठीक है. क्लियर. ओके ओके ओके. चलिए बताइए. A positive number पॉजिटिव नंबर is 5 times इज 5 टाइम्स another number. another number. A positive number is 5 times another number. हाँ. If 21 is added If 21 is added to both the numbers, to both the numbers, if 21 is added to both the numbers, the one of the new numbers the one of the new numbers becomes twice the other new number. becomes twice the other new number. Becomes twice the other new number. Are we clear? Are we clear? चलिए. हाँ. What are What are the numbers? the numbers? तो यहाँ पे हो जाएगा what are the numbers. What are the numbers? क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है. ओके. क्या क्या करेंगे भाई साहब बताइए. अमन बता, जल्दी बता, जल्दी बता बेटा, फटाफट. हाँ हूँ हाँ क्या किस क्या. अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर. अनदर नंबर कौन से अनदर नंबर को मान रहे हैं कि इस नंबर को मान रहे हैं. If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. तो हम यहाँ पे मान लेते हैं let another number, ये वाला देखो, ये वाला another number, let the first other number be x. ठीक है. So therefore the first number क्या हो जाएगा बोलो. 5x हो जाएगा. ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 5x. इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मतलब 5x प्लस 21 कर दिया हमने और इस पे भी 21 ऐड कर देंगे, x प्लस 21. इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स, तो ये वाला क्या हो जाएगा ट्वाइस द न्यू नंबर. ये देखो, ये वाला नंबर, ये वाला न्यू नंबर बना. ठीक है. ये वाला न्यू नंबर बना इससे और ये वाला न्यू नंबर बना इससे. ठीक है. न्यू नंबर. सो दिस विल बी इक्वल टू दिस. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 42. सो दिस मीन्स हाउ मच. इसको अगर हमने इधर ले लिया तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 21 और यहाँ पे कितना हो गया 3x. 3x इज इक्वल टू 21. सो देयरफॉर 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी. What will be the value of x? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 बाई 3, तो ये हो गया 7. x की वैल्यू हो गई 7. ठीक है. क्लियर है. What are the numbers? तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे 7 और 7 5 जा कितना हो गया 35. तो इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 42. ठीक है. क्लियर. ओके. चलिए बताइए. Sum of the digits Sum of the digits of a 2-digit number of a 2-digit number. Sum of the digits of a 2-digit number is 9. is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than original number by 27. Greater than the original number by एक मिनट. हाँ. What is the 2-digit number? ठीक है. ये कौन अपने पेन से आवाज कर रहा है तब से. ओके. सो
sum of the digits of a 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. ठीक है, तो sum of the 2 digits is 9. मतलब क्या मान लेंगे आप, देखो यहाँ पे आप मान लेंगे let the units digit be x. तो यहाँ पे बताओ the tens digit कितना हो जाएगा? कम ऑन पीपल, जल्दी 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 बताना है. द टेंस डिजिट इज कितना हो जाएगा? अरे तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो भाई साहब. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9. तो दूसरा वाला नंबर कितना होगा अगर एक को x माना है तो? अरे यार कर लो ना, देखो समझ लो, यहाँ पे 4 और 5 है, ऐसा नंबर है. सम ऑफ द 2 डिजिट्स कितना है? 9 है कि नहीं? 4 + 5 9 है कि नहीं? तो अगर मैंने बोला एक डिजिट है 5, तो दूसरा डिजिट क्या होगा? कहाँ से आया? 9 - 5 करके आया ना. 9 - 5 कर दो, 4 हो जाएगा. तो अगर एक डिजिट x है तो दूसरा डिजिट क्या होगा? अरे 9 - x होगा. x - 9 कैसे होगा? 9 - x. ठीक है, सो दी अदर डिजिट इज, तो यहाँ पे 10th डिजिट क्या हो जाएगा? 9 - x. तो नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो. देयरफॉर द नंबर इज कितना होगा? अरे बाबा, अगर कोई नंबर है 45 तो वो नंबर कितना होता है बोलो? 4 × 10 + 5, ये होता है ना नंबर. तो यहाँ पे अगर नंबर इज, तो नंबर कितना हो जाएगा? आपको 10th डिजिट दिया हुआ है यहाँ पे, कितना है? 9 - x × 10 + x. सो दिस विल बी हाउ मच? 9t - 10x + x. सो दिस विल बी 90 - 9x. 90 - 9x. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? द नंबर इज 90 - 9x. ठीक है, दिस इज फाउंड द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27. ये रिजल्टिंग नंबर हो गया. 90 - 9x इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर क्या है बोलो? अरे ओरिजिनल नंबर 27 नहीं है, माइनस करेंगे तो 27 आएगा. ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका 90 - 9x है ना. अगर आपने इस पे ऐड किया कितना, इफ द डिजिट्स, अच्छा तो हमारा ये नंबर हो गया. दिस इज बेसिकली द नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है. ठीक है, अभी डिजिट्स को हम रिवर्स करते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. सो देयरफॉर नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स. इंटरचेंजिंग द डिजिट्स कितना हो जाएगा बोलो? नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स कितना हो जाएगा? अरे यार तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो. यहाँ पे हमने × 10, एकदम तुम लोग कुछ भी कर नहीं रहे हो, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है. घर पे जाके ये NCERT के प्रॉब्लम्स कीजिए, आप रेफरेंस बुक से प्रॉब्लम्स कीजिए, जो नहीं आ रहा है वो पूछिए. मैं यहाँ पे आपको सारे प्रॉब्लम्स दिखा रहा हूँ, इसकी वजह से आप घर पे एक भी प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं. डिजिट्स को मैंने इंटरचेंज किया. अभी देखो 45 को मैं लिख रहा हूँ 4 × 10 + 5. तो अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज करूँगा तो 54 होगा. सो दिस विल बी हाउ मच? 5 × 10 + 5. तो यहाँ पे अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मतलब ये अभी बन जाएगा 10th डिजिट, और ये क्या बन जाएगा बोलो? तो नंबर क्या हो जाएगा? दिस विल बी x × 10 9 - x. तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 10x + 9 - x. तो 10x - x कितना हो गया? 9x + 9. दिस विल बी द न्यू नंबर फॉर्म. आपका ये सारा जितना भी कंप्लीट होता जा रहा है ना, टेस्ट में पाइल अप होता जा रहा है. फट से मैं टेस्ट दूंगा सब. अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो टेस्ट में 0 ही आने वाला है. ना आप वीडियोस देख रहे हैं, ना घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. मैथ्स प्रैक्टिस से ही चलता है भाई साहब. मैथ्स में आप जितना उसको रट के थोड़ी ना हम कर सकते हैं. सो इट ऑल गोज बाय प्रैक्टिस. इफ यू आर नॉट डूइंग इट देन यू विल बी लैंडिंग अप इन अ बिग प्रॉब्लम. हो गया ये? तो ये आपका न्यू नंबर आ गया. ठीक है, अगर हमने डिजिट्स को किया, द डिजिट्स इट्स फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर. मतलब 9x + 9 ये न्यू नंबर है, माइनस अगर हम कर दें ओरिजिनल नंबर दैट इज 90 - 9x. इसको ब्रैकेट में डालना. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 27. ये इससे 27 ग्रेटर है. ओरिजिनल नंबर, न्यू नंबर माइनस द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 27. चलिए अभी हम इसको ब्रैकेट को हटाएंगे अगर, तो 9x + 9 माइनस ये हो गया 90, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? + 9x इज इक्वल टू 27. ये 9x + 9x कितना हो गया बोलो?
18x और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 9 माइनस 90, तो ये कितना हो गया बोलो -81। दिस इज इक्वल टू 27। इसको हम उधर लेकर जा रहे हैं, तो 18x इज इक्वल टू 27 प्लस 81, ठीक है। 7 + 1 हो गया 8, 2 + 8 हो गया 10, तो 18x इज इक्वल टू 108। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 108/18, ठीक है। तो 8 6 40 होगा ना, 18 इंटू 6 करेंगे अगर, 8 6 48, 6 1 6 + 4 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू, मतलब ये यूनिट डिजिट हो गया। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा देयरफॉर, तो 10th डिजिट क्या हो जाएगा, 10th डिजिट क्या हो जाएगा बोलो, जल्दी बोलो। अरे बाबा x निकाला मैंने यूनिट डिजिट, तो 10th डिजिट कितना हो जाएगा, दिया तो हुआ है 9 - x। एक पैसे का दिमाग नहीं लगा रहे हो आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो नंबर कितना हो गया, नंबर इज ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा 3 × 10 प्लस 3 × 10, ये 10th डिजिट हो गया ना, और यूनिट डिजिट कितना है 6, तो ये आपका नंबर हुआ 36। बस मैं जब बोलूँगा तब बोलो, ठीक है। 36 अगर मैं इसका रिवर्स करता हूँ तो क्या हो जाएगा बोलो 63 - 36 कीजिए, कितना आ जाएगा 27। कुछ हिसाब ही नहीं है भाई साहब, तुम लोग कैसे क्या पढ़ रहे हो, बोलिए। one of the two digits one of the two digits of a two digits number of a 2 digit number, one of the 2 digits of a 2 digit number, is 3 times 2 digit number is 3 times the other digit. the other digit. If you interchange the digits, If you interchange the digits of this two-digit number of this 2 digit number and add the resulting number and add the resulting number to the original number, to the original number, you get 88. you get 88, okay. What is the what is original number? the original number, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या मान लेंगे, सिर्फ x मानने से ही नहीं होगा भाई साहब, आपको इक्वेशन को समझना पड़ेगा। लेट द ओरिजिनल नंबर बी x, ठीक है, क्लियर है, ओके। वन ऑफ द 2 digits नंबर ऑफ अ 2 digit इज 3 times द अदर डिजिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए लेट द ओरिजिनल, नहीं नंबर नहीं, हमको यहाँ पे बेसिकली डिजिट मानना पड़ेगा। लेट द यूनिट्स डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर बी x, ठीक है। सो देयरफॉर 10th डिजिट क्या हो जाएगा इसका बोलो, one of the digits of the 2 digit number is 3 times the other digit। तो मतलब अगर यूनिट डिजिट को हमने x माना तो 10th डिजिट क्या हो जाएगा 3x, ओके चलिए, ठीक है। नंबर क्या हो जाएगा बताइए, देयरफॉर द नंबर, बोलो द नंबर इज, अरे अगर मैं बोल रहा हूँ एक नंबर है जिसका यूनिट्स डिजिट 5 है और 10th डिजिट 4 है, तो नंबर क्या हो जाएगा 45 कैसे आया, 4 × 10 + 5 ना। तो यहाँ पे भी तो मैं वही बोल रहा हूँ, यूनिट्स डिजिट x है और 10th डिजिट 3x है, तो नंबर क्या हो जाएगा, बस इतना ही करना है, 3x × 10 + x, तो कितना हो जाएगा ये बोलो 30x + x, तो दैट विल गिव यू हाउ मच 31x, तो द नंबर इज 31x, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 digit नंबर, ठीक है, तो अभी बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स, बाय इंटरचेंजिंग, ठीक है, तो आपका यूनिट्स डिजिट क्या आ जाएगा बोलो, यूनिट्स डिजिट क्या आ जाएगा बोलो, अभी यूनिट डिजिट हो जाएगा 3x और 10th डिजिट क्या हो जाएगा 10th, अरे डिजिट x, ठीक है। सो देयरफॉर न्यू नंबर क्या हो जाएगा बोलो, अभी हम करेंगे x × 10,
x इंटू 10 प्लस 3x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो, 13x हो गया ये, 13x, ठीक है। ओके, what is the now if the interchange the two digits of this number and the resulting number is added to the original number, तो original number plus the new number, ठीक है, this is equal to how much, 88, this is equal to 88। यहाँ पे 3 + 1 हो गया 4, 3 + 1 हो गया 44x is equal to 88, so therefore x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 88/44, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। ओके, दैट इज इक्वल टू 2। तो आपका भाई साहब ओरिजिनल नंबर, तो यूनिट्स डिजिट क्या हो गया, यूनिट्स डिजिट आपका हो गया भाई साहब 2। टेंस डिजिट क्या हो जाएगा बोलो, टेंस डिजिट क्या हो जाएगा बोलो, 3 × 2 दैट इज 6। सो देयरफॉर द नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 × 10 + 2 दैट इज 62। दिस इज द नंबर, ठीक है। ओके, अभी अगर हमने इसको देखो रिवर्स करके लिखा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 62 का अगर हमने 62 का अगर 26 किया, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है बोलो, 88 आ रहा है। सो इट इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। इस तरह से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपने जो आंसर लाया वो करेक्ट है कि नहीं। हाँ बोलिए। शुभोज मदर, शुभोज मदर, ओके, शुभोज मदर, प्रेजेंट एज इसका भाई साहब प्रेजेंट एज इनका कितना है, is 6 times Shubho's present इज 6 टाइम्स शुभोज प्रेजेंट age. एज। शुभोज, एक मिनट, प्रेजेंट एज, ठीक है। Shubho's age 5 years from now शुभोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present will be 1/3 of his mother's present age. age, है ना। What are their एक मिनट, ठीक है, हाँ बोलिए। What are their present ages? What are their present ages, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो शुभोज मदर इज हैविंग हर एज इज 6 टाइम्स शुभोज प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, बोलो जल्दी बोलो। नहीं, मदर्स का क्यों, शुभो का लो ना, शुभोज प्रेजेंट एज। लेट शुभोज, जो कम होगा उसी को हमेशा x मानना, प्रेजेंट एज बी x। सो देयरफॉर थोड़ा सोचिए, शुभोज मदर्स एज कितना हो जाएगा, इज 6 टाइम्स ना। ये दोनों क्या हैं, प्रेजेंट एजेस हैं, ठीक है। ओके, 5 years from now, 5 years from now, अभी से 5 साल बाद क्या हो जाएगा बोलो, शुभोज एज कितना हो जाएगा बोलो, शुभोज एज विल बी हाउ मच, x + 5 एंड शुभोज मदर्स एज विल बी इक्वल टू 6x + 5, ठीक है। 5 years from now will be 1/3 of its mother's age, शुभोज प्रेजेंट एज। सो 5 years from now, शुभोज age 5 years from now, this is शुभोज age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। तो अभी मदर का प्रेजेंट एज कितना है, 6x, तो x + 5 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ शुभोज मदर्स प्रेजेंट एज। ये हो जाएगा इक्वेशन आपका, ठीक है। 3 हो गया, ये 2, तो इसका मतलब ये हो गया भाई साहब आपका 2x। यहाँ पे x + 5 है, इस 5 को हम उधर ले रहे हैं, इस 2x को हम इधर ले रहे हैं, तो x - 2x इज इक्वल टू -5, -x इज इक्वल टू -5। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 5, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 5। तो शुभो का प्रेजेंट एज कितना हो गया, देयरफॉर शुभोज प्रेजेंट एज कितना हो गया, 5, एंड शुभोज मदर्स प्रेजेंट एज ये कितना हो जाएगा बोलो, 6 × 5 दैट इज 30। अभी चाहे तो आप देख लो, अभी शुभो का 5 साल बाद उम्र कितना हो जाएगा, x + 5, 10 कैसे आएगा यार, 5 + 5 दैट इज 10, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी मदर का प्रेजेंट एज कितना है, 30, तो 1/3 × 10 करेंगे, सॉरी 30 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये 10 और 10 बराबर। सो वॉट एवर हैज़ बीन गिवन इन द इक्वेशन इज कन्फर्म्ड, ठीक है। चलिए बताइए। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserved for a school. रिजर्व्ड फॉर अ
रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल in Mountly village. ए चलो इन अ विलेज चला हाँ आगे The length and the breadth द लेंथ एंड ब्रेथ of the plot are in the ratio in the ratio 11:4. 11:4 ओके शरायु हाँ At the rate एट द रेट चलिए ₹100 per meter, ₹100 पर मीटर it will cost the village panchayat हाँ इट विल कॉस्ट चलिए विल कॉस्ट ₹75,000 ₹75,000 to fence the plot. फेंस द प्लॉट ओके What are the dimensions of the plot? व्हाट आर द Time. डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट ठीक है ये पूछा है आपसे ओके चलिए यहाँ पे हम एक देख लेते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट बेसिकली कैसे दिखता है सो दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लॉट दिस इज बेसिकली द रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये ठीक है ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया ओके नाउ देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन अ विलेज तो इसका भाई साहब एल है और इसका भाई साहब बी है ठीक है लेट बी इज इक्वल टू एक्स तो एल क्या लेट बी इज इक्वल टू 4x हमने इसको मान लिया 4x तो लेंथ कितना हो जाएगा बोलो 11x ठीक है लेंथ इज इक्वल टू 11x बी इज इक्वल टू 4x ठीक है एट ₹100 पर मीटर एट ₹100 पर मीटर है ठीक है अभी आप यहाँ पे फेंसिंग कर रहे हैं ये पूरा जो है तो आपका फेंसिंग हो रहा है दिस एंटायर थिंग इज फेंसिंग ठीक है तो फेंसिंग में कितना कवर हो जाएगा बताओ एरिया टोटल एरिया कितना टोटल कितना लेंथ कवर होगा टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा बोलो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग भाई साहब जितनी उसकी पेरीमीटर होगी विल बी पेरीमीटर ठीक है और ये कितना हो जाएगा बोलो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ रेक्टेंगल का होता है तो 2 इंटू लेंथ कितना हो गया बोलो 11x प्लस ब्रेथ 4x तो यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 15x दैट इज 30x क्लियर समझ में आ रहा है ये 30x हो गया ओके तो आपका भाई साहब ये हो गया 30x अभी 30x का देखो यहाँ पे रेट क्या है पर मीटर 100 है सो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा बोलो टोटल कॉस्ट विल बी ये जो लेंथ आया 30x इंटू 100 ठीक है दिस विल बी टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितना बिल आया भाई साहब 75,000 ठीक है सो 30x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 75,000 अपॉन 100 ये 100 और ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया ये 750 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपॉन 30 ठीक है तो ये कितना हो गया बोलो 25 ठीक है x की वैल्यू आ गई 25 तो ब्रेथ कितना हो गया ब्रेथ विल बी इक्वल टू 4x दैट इज 4 इंटू 25 मीटर दैट इज 100 मीटर ठीक है लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 11x दैट इज 11 इंटू 4 दैट इज 44 मीटर क्लियर है समझ में आ रहा है ये दिस विल बी द डायमेंशन अभी चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं ठीक है इफ़ यू हैपन टू चेक इट लेट्स से अगर आप इसको चेक करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो पूरे को फेंस करने के लिए टोटल फेंसिंग कितनी हो जाएगी 11 प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई चलिए ऐसे कर लेते हैं हम इसको नहीं समझ पाएंगे आप ठीक है तो यहाँ पे 11 प्लस 4x 11x मतलब कितना हो गया आपका मतलब 44 और ये 100 हो गया ना लेंथ और ब्रेथ ठीक है तो 100 इंटू 2 200 और 100 इंटू 44 इंटू 2 88 तो ये हो गया 288 एट द रेट ऑफ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब हाँ हाँ 25 होगा करेक्ट देखो यहाँ पे जब आंसर चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा 11 इंटू 25 होगा राइट सो दिस विल बी 275 ठीक है ओके तो अगर हम ये 288 करते हैं देखो यहाँ पे 288 हो जाएगा इसको 275 है ना 275 200 प्लस 275 सो दिस विल बी नहीं 275 क्यों होगा 275 इंटू 2 होगा ना लेंथ को 2 बार लेंगे ठीक है सो 200 प्लस 275 इंटू 2 कितना आ जाएगा दिस विल बी 5 2 से 10 7 2 से 14 115 2 2 से 4 1 5 है ना कितना आ गया बोलो 5 7 और ये 100 रुपीज़ पर मीटर है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 75,000 आर वी गेटिंग दिस पीपल समझ में आ रही है ओके चलिए बताइए Sir,
A son buys two kinds of cloth material. two kinds of cloth